हेलो, नमस्कार, अभिनंदन, आभार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का। और आज का हमारा जो विषय है द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनसीन पैसेजेस, द प्रैक्टिसेस ऑफ द अनसीन पैसेजेस थ्रू दिस वीडियो। आपको बेटा मैं मेथड बताने वाला हूँ। आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस भेज चुका हूँ कि एक जो वर्ब ऑफ टाइम जिससे हमारा इनिशियली WH फैमिली का वर्ड आता है उसमें किसका क्या मीनिंग होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट विच काइंड ऑफ आंसर्स यू हैव टू रिस्पॉन्ड एट दैट मोमेंट by taking the sense of the questions also. But today I'm going to read the passage in front of you all, and in the same manner I will write down here the answers. You have to listen carefully. So first of all, here it is, and this video is not only for plus 1, this is for the both standard plus 1 and plus 2 also. Unseen passages just for practice. So here it is, in which manner you have to read or scan or skimming the passage. Your focus, complete focus should be on the reading. Necessity is indeed the mother of invention. When areas in and around Leh begin to experience water shortages, life didn't grind to a halt. Now here it is the word halt. Halt here it means stop. आपका जो लेटेस्ट वोकैबुलरी है स्टूडेंट्स, वो ब्रिटिश से कुछ सिनोनिम्स आपका इंक्लूड हो रहा है, कुछ अमेरिकन से, कुछ फ्रेंच और जर्मन से कन्वर्ट किया जा रहा है। सो आपका अपडेट होना भी बहुत जरूरी है। दिस इज मैंडेटरी टू कीप योरसेल्फ अपडेट, देन यू विल गेट सक्सेसफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश तभी आप सीख पाएंगे स्टूडेंट्स। When areas in and around Leh begin to experience water or shortages, life didn't grind to a halt. Why? Because Chewang Norfel, a retired civil engineer in the Jammu and Kashmir government, came up with the idea of artificial glaciers. Second passage. Ladakh, a cold desert at an altitude of 3,500 meters above the sea level, has a low average annual rainfall rate of 50 millimeters. Glaciers have always been the only source of water in Leh and Ladakh. Agriculture here is completely dependent on the melting of glaciers, unlike the rest of river monsoon fed India. But over the years, with increasing effects of climate change, the rainfall and snowfall patterns have been changing, resulting in severe shortages and drought situations. Given the severe winter conditions, the window for farming is usually limited to one harvest season. Third passage. Leh is located between the natural glacier above and the village below. The one closer to the village and lowest in altitude melts first, providing water during April-May, the crucial sowing season. Further layers of ice above melt with increasing temperature, thus ensuring continuous supply to the fields. Thus, farmers have been able to manage 2 crops instead of 1. It costs about ₹1,50,000 and about to create an artificial glacier. Fifth, fondly called the Glacier Man, Mr. Norfel has designed over 15 artificial glaciers and around Leh since 1987. In recognition of his pioneering effort, he was conferred the Padma Shri by President Pranab Mukherjee in 2015. So this is the passage, student. And now, if I read it concentrately and I have complete focused on the reading, then it will be so easy to find out the answers. And another most important, students, you have to write the answer as much as compulsory in the form of response. At least
ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स 1, यू विल गेट सिंगल मार्क्स। आपको बच्चे 1 नंबर मिलना है। आप क्या करते हो, आप पूरा पूरा पैसेज उठा देते हो और उसको लिख देते हो, वो गलत है। आपको मैंने अबव बताया लास्ट वीडियो के अंदर, अबव बताया है, अबव ऑफ टाइम है, रेस्ट डिपेंड सेंस पे करना है। जब अबव ऑफ टाइम दिमाग में आ जाते हैं सपोज को, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चे। देखिए मेरे पास इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो इस पैसेज का, उसमें बच्चे वो बता रहा है हु वॉज च्योंग नॉर्फल, हु वॉज, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, च्योंग एंड नॉर्फल। अब देखिए इसमें बच्चे क्या है, अब यहां पर्सन आ गया, इस पर्सन की वजह से यहां लग गया हु। अब वो इस पर्सन के बारे में जानना चाह रहा है कि च्योंग नॉर्फल कौन था। एक चीज बच्चे मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस में बताए थे, इन विच मैनर ही और शी पुट अप दैट क्वेश्चन यू हैव टू रिस्पोंड इन द सेम मैनर। इफ ही और शी आस्क दैट क्वेश्चन, put up that question in the form of present, then you have to respond in present. If that question is asked by the author or the examiner in the form of was, were or the past, you have to respond in past. If the sense of the question is given in the form of future, then you have to respond in future. ये आपकी एबिलिटी को शो करता है बेटा, आप में कितनी सक्षम हैं कि उस पैसेज को पढ़ने के बाद आप कितना समझ पा रहे हैं। तो चलिए यहां पर मैंने एक चीज जो है रीड आउट की थी फर्स्ट पैसेज में, च्योंग नॉर्फल अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर इन द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर। तो ये सिर्फ इसका इतना ही उत्तर बन जाएगा। तो हमें यहां आंसर लिखना है च्योंग नॉर्फल, च्योंग नॉर्फल was a retired, च्योंग नॉर्फल was a retired civil engineer in the Jammu and Kashmir, in the Jammu and Kashmir government came up with the idea of artificial glaciers. ये आंसर रहेगा बच्चे। वो कौन था, वो एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर था जम्मू और कश्मीर में। गवर्नमेंट केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का वो एक विचार लेकर के आया था। अनदर क्वेश्चन क्या है, सेकंड बी पार्ट, द क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख, व्हाट kind of land form is Ladakh, means that जो लद्दाख है वो किस तरह की फॉर्मेशन में, रचना में है, किस तरह की उसकी बनावट है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट, आंसर में क्या आ जाएगा, लद्दाख आ cold desert, Ladakh a cold desert at an altitude, अक्षांश की बात होती है यहाँ, altitude, latitude ये अक्षांशों में आता है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बच्चे, of 3,500 meters above the sea level, has, it is also the kind and form, has a low average annual rainfall
annual rainfall rate of 50 millimeters, 50 mm. So अब उसने यहां पर हमसे क्या चीज पूछी है कि व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख, वो किस प्रकार की जमीन है, वो किस प्रकार का एक क्षेत्र है। तो ये उसके फिजिक्स सिस्टम में आ जाएगा, उसके फॉर्म में किस तरह की फॉर्मेशन है उसकी, ये है, इसमें क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, नाउ आई विल रिपीट द फर्स्ट क्वेश्चन, गिव यू द प्रॉपर गाइडलाइन, बट you have to do practice. Without practice there is nothing, students, and always keep remember, in English we have to explain short, but in Hindi we have to explain at a very large rate, बहुत बड़े स्तर पे। एक नॉर्मल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अब हम क्या कहते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कि अगर किसी को समझाना है तो इतना ही काफी रहता है, इट्स इनफ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट इन हिंदी में हमें उसे पूरी डिटेल में लेके जाना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। लेकिन अब ओवरऑल अगर हम इसका कहें तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आपको कम एक्सप्लेन करना पड़ता है अगर रेलेवेंटली आप करते हैं, इफ यू डू दैट थिंग रेलेवेंटली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैव ग्लेशियर्स बीन द ओनली सोर्स ऑफ वाटर फॉर लेह एंड लद्दाख। अब लेह और लद्दाख के लिए ग्लेशियर जो हैं वो ओनली सोर्स ऑफ वाटर क्यों है? तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर स्टूडेंट्स, ये हमारा सी पार्ट में थर्ड आंसर रहेगा। इसका हम लिखेंगे एग्रीकल्चर हियर, एग्रीकल्चर भी इससे शुरू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल बेटा। एग्रीकल्चर हियर इज कंप्लीटली एग्रीकल्चर हियर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट on the melting of glaciers, unlike the rest of river, unlike the rest of river, oblique monsoon hyphen fed in India, monsoon fed India, relatively hyphen. So this is the answer of the C part, which the passage I read in front of you all. Now I am telling you about the questions in which manner we can form. Next, why has the pattern of snowfall and rainfall changed over the years? I also read this thing कि इसका जो पैटर्न है बच्चे वो कैसे चेंज होता है। तो ये सेकंड पैसेज में पढ़ा था, द रेनफॉल एंड स्नोफॉल पैटर्न हैव बीन चेंजिंग रिजल्टिंग इन सेवरी शॉर्टेज एंड ड्राउट सिचुएशंस गिवन द सेवरी विंटर कंडीशंस, विंडो फॉर फार्मिंग इज यूजुअली लिमिटेड टू वन हार्वेस्ट सीजन। सो स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने अनदर वन है, हाउ आर ग्लेशियर सिग्निफिकेंट फॉर इरिगेशन। ग्लेशियर जो है जो आपकी इरिगेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, ये देखिए, फर्दर लेयर्स ऑफ आइस अब मेल्ट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर दस एंश्योरिंग कंटीन्यूअस सप्लाई टू द फील्ड्स, फार्मर हैव बीन, तो ये आपका अप्रैल में द क्यूरियस सोविंग सीजन होता है, वहां से शुरू हो जाएगा, जो लोकेटिंग है, ये सारी की सारी चीज बेटा। तो ये मैंने आपको एक मेथड बताया है बेटा कि किसी भी क्वेश्चन, अब देखिए जितना क्वेश्चन पूछा मैंने उतना आंसर दिया है। रेस्टली क्या होता है, कई बार टोर 3 वर्ड्स का भी आंसर आ जाता है, टोर 3 सेंटेंसेस का भी आ जाता है, बट नोट मोर देन। आप लोग क्या करते हैं, एक पैसेज है जैसे मैंने अभी जो किया, अब क्या करेंगे आप ये पूरा का पूरा, इसमें अभी फर्स्ट पैसेज के अंदर जो है आपका, ये देख सकते हैं आप, इसमें दिखाया है विकेश चिवोंग नॉर्फल, अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर इन द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था, थ्रू दिस वीडियो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, यहां से ये आ जाएगा। अभी सेकंड पैसेज है, अभी जस्ट ही मैंने ये अनसोल्व्ड है बच्चे, ये देखिए इसका कोई आंसर नहीं है, इसके बाद पैसेज आ रहा है, तो ये अनसोल्व्ड है। अनसोल्व्ड को मैंने जस्ट रीड किया, फोकस किया, स्कैनिंग किया और इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। जहां जहां मुझे पता था कि ये क्वेश्चंस हैं, ऑल दीज आर द क्वेश्चंस, they have the answers in these passages, then side by side at the time of reading I underline, कि उसके अंदर आप जब भी रीडिंग करते हैं बेटा तो आप उसको साथ के साथ अंडरलाइन करें।
अंडरलाइन करने से क्या रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा, वो वर्ड्स दिमाग में रहेंगे। अगर पैटर्न की बात की है, ये देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा पैटर्न ऑफ रेनफॉल है, तो बेटा ये देखो, रेनफॉल एंड स्नोफॉल पैटर्न्स हैव बीन चेंजिंग रिजल्टिंग इन सेवरल शॉर्टेज एंड ड्रॉट सिचुएशंस गिवन द सेवरल विंटर कंडीशंस, द विंडो फॉर फार्मिंग यूजुअली लिमिटेड टू 1 हार्वेस्ट पर्सन। अनदर वन थिंग, इसके अंदर जो हमें पूछा गया कि दो जो टो क्रॉप्स हैं, एक टो क्रॉप्स का क्वेश्चंस भी है बच्चे, यहाँ देखिए इसके अंदर है आपका हाउ डू फार्मर्स मैनेज टू ग्रो टो क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ वन, तो वो कैसे मैनेज कर पाते हैं। देखिए, फार्मर्स हैव बीन एबल टू मैनेज टू क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ वन, इट कॉस्ट अबाउट 1,50,000 अबाउट टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल ग्लेशियर। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ से शुरू हो जाएगी। Layers of ice above melts with increasing temperature, thus ensuring continuous supply to the fields. Thus farmers have been managed to crops instead of one. So बच्चे ये एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपका दिया जाता है। So बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये जो पैसेज फॉर्मेशन और क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चे, ये +1 और +2 बोथ स्टैंडर्ड के लिए। तो बेटा आपका जो लेटर राइटिंग था +2 स्टैंडर्ड, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। नोट मेकिंग आपका आएगा नहीं, पहले भी आपको पैसेजेस का मैंने गाइडलाइन दिया था, अभी फिर एक अच्छे से दिया है इस बुक के थ्रू कि आपको कैसे करना होता है। प्लीज अवॉइड ओवर राइटिंग इन एनी काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइटिंग स्किल, चाहे वो आपका कोई भी लेटर है, कोई भी नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, उसमें जो आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होता है बेटा, उसके अंदर याद रखिए ओवर राइटिंग को अवॉइड किया जाता है। आपका रेलिवेंटली ईच एंड एवरीथिंग, मैंने आपको बताया मार्किंग स्कीम, जो पीछे बताई कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से हर एक चीज होती है, तो इसमें भी आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन आना है, तो उसमें आपको एक ही मार्क्स मिलने वाला है। आप उसमें चाहे तो उसे एक सेंटेंस में आंसर को एक्सप्लेन कर दीजिए, चाहे 10 में कर दीजिए। आप 10 में करेंगे तो दैट विल बी ओवर राइट। सो ऑलवेज अवॉइड ओवर राइटिंग एंड फॉलो द नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सीबीएसई बोर्ड मार्किंग स्कीम। तो उसमें कंटेंट को कंटेंट के हिसाब से देखा जाता है बेटा, चेकिंग के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका कंटेंट उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, डोंट थिंक सो कि आपके दिमाग में जो भी आएगा बेटा आपको वही लिख दिया। नो, क्वेश्चंस की एक एक वर्डिंग कंटेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक्सप्रेशन उसी के हिसाब से होना चाहिए। आपका जो कोहेरेंट लेवल होता है उसके अंदर वो रेलेवेंटली हो, इररेलेवेंटली मैटर विल नॉट बी प्रेफर्ड, वो नहीं दिया जाएगा उसको प्रेफरेंस बेटा। सो टेक केयर, for your next video you have to wait, and I hope so that you will understand. Today I have discussed recently about the unseen passages in which you have to find out the question answers, in which way which the instructions you have to follow at the time of attempting the reading skill section passages. Till then, thank you, God bless you.